Good evening, dear learners. This is your educator Rashi Puddar for UGC Net Paper 2 English. Our today's session is about a poem by Henry Louis Vivant de Rosio. This poem is about the exquisite joy of a slave who is freed to be a man. The basic essence of this poem concerns the inherent happiness to be free in contrast to the pangs of subjugation, oppression, and most importantly, slavery. Derozio, being a vibrant choice of the Bengal Renaissance, hints at the slavery of Indians to the British East India Company by referring to an individual who was enslaved. Through writing this piece, he tried to make the Indians desirous of the cherished freedom which not only emancipate a person's mentality but also helps to expand the potential of one's soul. The poem Freedom to the Slave shows how Britishers ruled the Indians and how Indians should be desirous for their freedom. So, let us start without any delay. The poet Henry Louis Vivant de Rosio was born in 1809. सबसे पहला और most important information यहाँ पे है कि आपको इनका birth date याद रखना है. During the time when he was writing was Indian Renaissance या in early Indian English poetries में इनकी poetries count की जाती है and this particular poetry was published in the early 19th century, that is 1827 में ये poem publish होता है in his poetry collection Poems. ये information आपको याद रखना है and it is a form of a lyric poem. Now let us look about the writer. De Rosio was an Anglo-Indian poet. एंग्लो इंडियन का मतलब है हु इज ऑफ मिक्स ओरिजिन. इंडियन भी है एंड वो अमेरिकन वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं. दैट इज एंग्लो इंडियन पोएट एंड रेडिकल थिंकर ऑफन कॉल्ड द फर्स्ट इंडियन पोएट टू राइट इन इंग्लिश विद अ नेशनलिस्ट वॉइस. He was a teacher at Hindu College, Calcutta, and a strong advocate for freedom, reform, and intellectual awakening. तो इनके वर्क्स में जनरली आपको ये सारे ही टॉपिक्स पे बात किया हुआ दिखता है. अबाउट रिफॉर्मेशन, फ्रीडम क्या होता है, इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग क्या होता है, लोगों को इंटेलेक्चुअली सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए. The poem Freedom to the Slave is a powerful poem celebrating the moment a slave is granted liberty, both physically and spiritually. ये जो पर्टिकुलर पोएम है इनका, इट टॉक्स अबाउट द मोमेंट जब एक स्लेव को पता चलता है कि वो फ्री है, नॉट जस्ट फिजिकली बट मेंटली एज वेल एंड स्पिरिचुअली एज वेल. ही कैन डू व्हाट ही वांट्स टू डू. Thus, it reflects romantic ideals, enlightenment, thinking a deep emotional appeal to human dignity and justice. इसीलिए इनके पोएम्स में आपको फ्रीडम को रोमांटिसाइज करने को बोला गया है, एक इनलाइटनमेंट थिंकिंग प्रमोट किया गया है, डीप इमोशनल अपील है कि ह्यूमन डिग्निटी होता क्या है एंड व्हाई ह्यूमन डिग्निटी इज इंपॉर्टेंट. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द पोएम, हमारा जो टेक्स्ट है इट स्टार्ट्स विद अ कोटेशन बाय थॉमस कैम्पबेल. एंड एज द स्लेव डिपार्ट्स द मैन रिटर्न्स. दिस कोटेशन इज अ वेरी पावरफुल कोटेशन इन इटसेल्फ. आप इस कोटेशन को देखो, ये कितना डीप थॉट वाला कोटेशन है कि जैसे ही एक इंसान के अंदर से स्लेव डिपार्ट करता है, स्लेव बाहर निकलता है, वो वापस ह्यूमन बनता है. अ स्लेव इज नॉट अ ह्यूमन. हमने हर बार पढ़ा है, हर बार देखा है दैट अ स्लेव इज नॉट अ ह्यूमन. ह्यूमन कौन होता है? समवन हु कैन थिंक, समवन हु कैन डू व्हाट ही वांट्स टू डू. सो अगर आपका खुद का कोई सेल्फ है ही नहीं, द आई फैक्टर आपके अंदर है ही नहीं, then you are a slave because you are doing what other wants to do. That is why he says, as the slave departs, the man returns. Now, after this, our poem directly jumps into the story of a slave who was enslaved. And the poem starts as, how felt he when he first was told, a slave he ceased to be. इसको पहली बार कैसा लगा होगा जब इसको बोला गया कि यू आर फ्री. हाउ प्राउडली बीट हिज हार्ट व्हेन फर्स्ट ही न्यू दैट ही वाज फ्री. और उसका जो हार्ट है वो कितना प्राउड के साथ बीट कर रहा होगा, उस हार्ट में कितनी ज्यादा प्राउडनेस आ गई होगी जब उसको पहली बार पता चला दैट ही वाज फ्री. द नोबलेस्ट फीलिंग्स ऑफ द सोल, और इस फीलिंग को नोबलेस्ट फीलिंग बताया गया है, द नोबल फीलिंग, the feeling of to be free, to glow at once began.
और आपका सोल जो है वो वापस से ऐसा लगता है कि ग्लो कर रहा है, बिकॉज यू हैव फाउंड योर सेल्फ। ही नेल्ट नो मोर, वो किसी के सामने अब झुकेगा नहीं। हिज थॉट्स वेर रेस्ड, उसके जो थॉट्स है वो वापस जाग रहे हैं, रेज हो रहे हैं, क्योंकि स्लेव को सोचने की जरूरत ही नहीं है। स्लेव विल जस्ट डू वट एवर द ओनर विल आस्क, but a man needs to think. Thus his thoughts were raised. He felt himself a man, and just hearing the news that he is no more a slave, he felt himself a man. He looked above the breadth of heaven around him, freshly blue. He looked above, वो ऊपर देखता है आसमान के तरफ, and the breadth of heaven around him, freshly blue. और जो नॉर्मल एयर है हमारे लिए, जो नॉर्मल ऑक्सीजन है, जो नॉर्मल स्काई है, उसके लिए वही जन्नत है, वही उसका हेवन है, और वहां पे उसको फ्रेश एयर फील हो रहा है। ही स्माइल्ड exultingly to see the wild birds as they flew. जो बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं ये उसको देख के काफी खुश हो रहा है, स्माइल कर रहा है। He looked upon the running stream. वो बहती हुई नदी को देख रहा है वहां पे, क्योंकि फ्रीडम इज लाइक द रनिंग स्ट्रीम। यहाँ पे बेसिकली ये सारे इमेजेस को प्रोवाइड करके, ब्रेथ ऑफ हेवन, वाइल्ड बर्ड्स एज दे फ्लू, रनिंग स्ट्रीम, ये सारी चीजों को, विंड्स, बर्ड्स, फ्लड्स, ये सारी चीजों के थ्रू पोएट जो है वो क्लियरली हमें फ्रीडम का फीलिंग देना चाह रहे, क्योंकि आप देखो तो बर्ड्स पे किसी का कंट्रोल नहीं है, विंड पे किसी का कंट्रोल नहीं है, स्ट्रीम पे भी किसी का कंट्रोल नहीं है। सो बेसिकली एक फ्रीडम का एसेंस प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पे। So he looked upon the running stream that neath him rolled away, जो उसके पैरों के नीचे से बह रही थी। Then thought on winds and birds and floods and cried, I am free as they. जैसे ये फ्री है, इन पे किसी का कंट्रोल नहीं है, वैसे ही I am free. ओ फ्रीडम, देयर, यहाँ पे ये फ्रीडम को पर्सोनिफाई कर रहे पोएट और बोल रहे ओ फ्रीडम, देयर इज समथिंग डियर इवन इन दाई वेरी नेम। तुम्हारे नाम में ही कुछ बहुत बहुत पावरफुल है, कुछ बहुत डियर है। सिर्फ फ्रीडम सुन के आपको एक अलग एनर्जी फील हो रही है। दैट लाइट्स द ऑल्टर ऑफ द सोल। और जैसे ही फ्रीडम बोलते हैं उससे क्या होता है कि हमारा जो सोल का ऑल्टर है, ऑल्टर इज बेसिकली अ रेस्ड प्लेटफॉर्म। गॉड्स जो होते हैं उनके ऑल्टर पे हम लोग ऑफरिंग्स करते हैं, तो ऑल्टर वो होता है। तो ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो वर्ड है, द प्रोनाउंसिएशन है, तुम जो वर्ड हो फ्रीडम, इट इज लाइक कि मैं अपने सोल को कुछ फीड कर रहा हूँ, लाइट टू माई सोल विथ एवर लास्टिंग फ्लेम। और ये जो फ्लेम है ये कभी नहीं खत्म होता है। सक्सेस अटेंड द पैट्रियट sword that is unsheathed for thee, and glory to the breast that bleeds nobly to be free. और ये बोल रहे हैं कि ये जो पैट्रियोटिक फीलिंग है, पैट्रियोटिक सोड है, वो आपको फ्रीडम के लिए लड़ना पड़ता है, ये आपके हाथ में है। Blessed to be the generous hand that breaks the chain a tyrant gave. और ये बोल रहे हैं कि ये कितना, वो स्लेव कितना लकी है जो इस चीज से निकल पाया, जिसको फ्रीडम मिला है और उसके हाथों से वो चेन ब्रेक अवे हो रहा है। एंड फीलिंग फॉर अ डिग्रेडेड मैन गिव्स फ्रीडम टू द स्लेव। और ये जो इंसान जो अपने लाइफ का सब होप खो दिया था बीइंग अ स्लेव, उसको एक फ्रीडम का फीलिंग आ रहा है। नाउ ही इज नो मोर अ डिग्रेडेड मैन। और इस डिग्रेडेड मैन के लिए फ्रीडम क्या है? तो ये हमारा पूरा पोएम इसी चीज के बारे में बात करता है। द होल पोएम इज अबाउट दिस, एंड द राइटर सिंपली सेज, टॉक्स अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ इंडियंस बीइंग रूल्ड, बीइंग स्लेव्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बेसिकली वो राइटर जो है, हमारे पोएट जो है, वो लोगों के अंदर, रीडर्स के अंदर एक पैट्रियोटिक फीलिंग डालना चाह रहे हैं, दैट यू आर फ्री, यू नीड टू फाइट फॉर दैट, because freedom is something else. It is a noble feeling. You will become a man. So the poem captures the transformation of a slave when he is finally set free. The speaker describes the slave's reaction to freedom as one of overwhelming joy, pride and new life. He had lived like a thing. He was just a thing. उसका कोई वैल्यू नहीं था, एक सामान है ऐसे. But now stands as a man. लेकिन अब वो एक human है, man है, जिंदा है, who has dignity, who feels like rebirth, reborn, and able to breathe freely. The poem emphasizes that freedom is more precious than life itself and critiques the cruelty of slavery as an inhuman institution.
So in stanza 1, you'll see that the speaker addresses the movement of emancipation as sacred and noble, praising the act of setting a human being free. सबसे पहला स्टैंजा में हमने यही देखा कि स्पीकर जो है हमारे वो सिंपली आपको बता रहे कि फ्री होना कितना सेक्रेड है, कितना नोबल है और एक फ्री ह्यूमन बीइंग कैसा फील करता है. इन स्टैंजा 2, द न्यूली फ्रीड मैन इज नो लॉन्गर अ थिंग. एक फ्री मैन के फीलिंग्स के बारे में हमें देखने को पता चलता है दैट ही इज नो लॉन्गर अ थिंग. वो कोई सामान नहीं है but a human. He walks proud, stands upright, and reclaims his identity. In stanza 3, we see that he reflects on the chains that once bound him and feels both pain and amazement at his release. तो जब वो chains break away होता है तो उसको कितना खुशी होता है. In stanza 4, we see that his tears represent deep gratitude and hope and not sorrow. ये जो tears रहते हैं उसके वो आपको sorrow नहीं feel करा रहा है, वो एक ग्रैटिट्यूड है, एक होप का सिंबल बनता है वहां पे. एंड इन स्टैंजा 5, द स्पीकर कॉल्स फ्रीडम द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, मोर सेक्रेड देन द वर्ल्ड इटसेल्फ. So the themes in the poem are, let us look at the themes, and the themes are, first one is freedom and emancipation. This becomes the central theme of a poem as freedom as a divine and natural light, क्योंकि यहाँ पे हमें freedom को directly light से compare करने को मिल रहा है. इनजस्टिस ऑफ स्लेवरी, कि स्लेवरी कितना खराब चीज, ऑब्वियसली वो आपको डीह्यूमनाइज कर देता है, मॉरली रिप्रेहेंसिबल कर देता है, आप सोच नहीं पाते हो, आपकी सोचने की क्षमता खत्म कर देता है. कॉलोनाइजेशन के टाइम पे भी यही चीज हो रहा था. ब्रिटिशर्स जब रूल करने आए तो वो आपको सबसे पहले आपके कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज पर अटैक करते ताकि आप सोच ही ना पाओ, आपकी आइडेंटिटी आपसे खत्म करते हैं. नेक्स्ट इज डिग्निटी एंड ह्यूमैनिटी. ये बोलते हैं कि अगर ह्यूमन होना क्या होता है, द वैल्यू ऑफ ह्यूमन, डिग्निटी एंड ह्यूमैनिटी क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं. नेक्स्ट इज स्पीकर, द थीम इज सफरिंग एंड रिडेम्पशन. स्लेव कैसे सफर कर रहा है, एक इमोशनल जर्नी पे हमें जाने को मिल रहा है और उसमें हमें जॉय ऑफ रिलीज देखने को मिल रहा है. मॉरल करेज, द पोएम सेलिब्रेट्स दोज हु डेयर टू गिव फ्रीडम इवन इन अ सोसाइटी दैट एक्सेप्ट स्लेवरी. और सबसे बड़ी बात है कि जिस सोसाइटी ने, जिस ह्यूमन ने स्लेवरी एक्सेप्ट कर लिया है उसको फ्रीडम देना कितनी बड़ी बात है. सो मॉरल करेज की बात हो रही है यहाँ पे. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लाइन्स इन द पोएम आर, ही वॉज अ थिंग नाउ ही इज अ मैन. ये डायरेक्ट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिग्निटी क्या होता है. एक इमोशनल और मॉरल कोर के बारे में बात कर रहा है, फ्रीडम के बारे में बात कर रहा है. ओ इट इज गुड टू फील स्ट्रेंथ ऑफ ट्रूथ थ्रिल थ्रू द बॉज़न, and freedom to the slave, the noble brave who dares to say the word. So these are some of the important lines. Some poetic devices used in the poem are imagery, like imagery use किया गया, he stood erect, जो कि आपको dignity emphasize कर रहा है. Alliteration, ये सारे figurative poetic devices use किए गए हैं. Apart from these, we'll see inversion. What is inversion? The conventional order of sentences is reversed in the first two lines for the sake of the metrical pattern. In the poem we'll see it occurs in the line to glow at once began. So inversion का भी use हुआ है. Next one is personification. Freedom as a force और प्रेजेंस जहां पे शो किया गया है. सो डेरोजियो पर्सोनिफाइज द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम. देन एनाफोरा, ये सारे चीजों से आप अपना एक कंप्लीट स्ट्रक्चर, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर पे आंसर बना सकते हो. Anaphora occurs in the line 7 and 9, and these lines begin with the word he, meant for connecting the ideas. Next is epigram. Derozio uses an epigram in the lines, he knelt no more, his thoughts were raised, and he felt himself a man. Thus, the poet tries to say that after being freed, the slave felt the joy of being a man. Metaphor का भी use हुआ है हमारे poem में, and it occurs in the line breath of heaven. Next is apostrophe. ओ फ्रीडम का जहाँ पे वो लाइन है हमारा जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क है, वहां पे apostrophe का यूज किया गया है टू इन्वोक द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम बाय पर्सोनिफाइंग इट. साइनेडॉक का यूज किया गया है. Enjambment, alliteration, these are some of the important poetic devices that have been used in the poem.
If we talk about the structure of the poem, so the Freedom to the Slave is a 28 lines poem, and Derozio groups the line into a single stanza. And every 4 line of the text forms a unit similar to a quatrain and presents a specific idea. There is only a difference in line 9 and 16, and the poet packs the 8 lines together. He writes this piece from the third person's point of view and describes the happiness of the slave after getting freedom. So 28 लाइन का पोएम है. हर 4 लाइन आपका एक पैराग्राफ डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जो यहाँ से याद रखना है. राइम स्कीम रेगुलर है. ए बी सी बी का राइमिंग पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, जिसको हम लोग बैलेड राइम स्कीम भी कहते हैं. एंड द सेकेंड एंड द फोर्थ लाइन्स राइम टुगेदर. ओके. मीटर की बात करें तो इट इज कंपोज्ड ऑफ iambic tetrameter and iambic trimeter alternatively, and the poem begins with an iambic tetrameter line and it is followed by a line in iambic trimeter. This pattern is repeated throughout the text and the sanction of the first 8 lines in order to have an idea of the metrical scheme of the overall poem. तो आपको फर्स्ट लाइंस का, अगर आप देखो फर्स्ट 8 lines का मीटर राइम स्कीम देखो तो आपको पूरा पोएम का एक पैटर्न समझ में आएगा. नाउ डेरोजियो का जो पोएम है, this particular poem, it is ahead of time, both politically and morally, because he is talking about something which was just a dream to many. It mixes romantic idealism with enlightenment values of liberty and equality. And the emotional tone makes it universal through its rooted in specific historical context. So, the poem is a powerful, passionate, and politically charged poem that demands to confront injustice and celebrate the sacredness of liberty. And it remains one of the Derozio's most enduring contribution to English poetry and social consciousness, because it talks about what is freedom. I hope that the video was informative for you all. Now I would like to end the session. Have a lovely day, learners.